اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی قصے دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو میرا سلام۔ آج ہم بات کریں گے حضرت امام حسین کے جانثار جناب حبیب ابن مظاہر اسدی کی کہ انہوں نے کس طرح ضعیفی کے عالم میں اپنے وقت کے امام کی نصرت کی اور کربلا کے میدان میں شہادت نوش فرمائی۔ 4 محرم الحرام باروز ہفتہ عمر ابن سعد بن ابی وقاص زہری ملعون کربلا میں اپنے لشکر کے ساتھ داخل ہوا، اور اس کے بعد اس ملعون نے مذاکرات کا راستہ اختیار کیا، مگر فرعون کوفہ عبید اللہ ابن زیاد ملعون لشکر تیار کرنے میں مصروف رہا، اور اس نے ابن سعد ملعون سے یہی کہا تھا کہ میں تمہارے پیچھے لشکروں کی قطار لگا دوں گا۔ اس لیے اس ملعون نے اپنے وعدے کے مطابق لشکر تیار کر کے بھیجنا شروع کر دیے۔ ہزار 2,000 4,000 کے لشکر تیار کر کے اس ملعون نے 6 محرم سے روانہ کرنا شروع کر دیے۔ کوفہ کے باب البادیہ کا یہ منظر تھا کہ مین دروازہ کھلتا، ایک لشکر جنگی تبل، نکارے اور کوس بجاتا ہوا دروازے سے بہر آتا، جن کے ہاتھوں میں علم، تلواریں اور نیزے ہوتے، اور وہ کربلا کی طرف روانہ ہو جاتے۔ اور ابھی وہ لشکر نظروں سے اوجھل نہیں ہوتا تھا کہ دروازے سے دوسرا لشکر تبل بجاتا ہوا ظاہر ہو جاتا۔ وقفے سے ایک کے بعد دوسرا لشکر کوفہ سے نکل کر کربلا کی طرف روانہ ہو رہا تھا۔ ابن سعد ملعون 6,000 کا لشکر لے کر روانہ ہوا، تو اس کے بعد 6 محرم سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ میں ایک لشکر کی تعداد کیا بتاؤں، یہاں پر مناسب ہوگا کہ ان قبائل اور شہروں کے نام بتا دوں جن کے لشکر قطار در قطار کربلا معلی کی طرف رواں دواں تھے۔ پہلا قبیلہ شاکر تھا، دوسرا قبیلہ کندہ، قبیلہ ربیعہ، قبیلہ زابی، قبیلہ بجلی، قبیلہ نماری، قبیلہ بنی حنفیہ، قبیلہ بنی یریبو، قبیلہ مزہج، قبیلہ بنی زبید، قبیلہ حمیر، قبیلہ خزیمہ، قبیلہ بنی ریحہ، قبیلہ زہری، قبیلہ نبت، قبیلہ عبدی، قبیلہ سکونی، قبیلہ ملحب، قبیلہ بنی ابان بن دارم، قبیلہ غطفان، قبیلہ اسدی، قبیلہ غنوی، مشرقی، بنی عبد المدائن، قبیلہ حنزلہ۔ الغرض کوفہ کے جملہ قبائل اپنے حلیف قبائل سمیت قطار در قطار کوفہ سے کربلا کی طرف رواں دواں تھے۔ یہ تو وہ تھے جو باقاعدہ لشکر کی شکل میں آ رہے تھے، باقی انفرادی طور پر بہت سے لوگ کربلا کی طرف آ رہے تھے، جن میں کچھ تاجر تھے جو تجارت کا مال اٹھا کر منافع کمانے کی نیت سے آ رہے تھے، کچھ جراح، طبیب، خباز، روٹی پکانے والے، تباغی، کھانا تیار کرنے والے، ترکھان، لوہار، نیال، گھوڑوں کی نیلے لگانے والے، نقاص، غلام اور کنیزیں فروخت کرنے والے، الغرض ہر شعبے اور پیشے کے لوگ چوک در چوک کربلا میں داخل ہو رہے تھے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ 6 محرم کی شام سے کربلا میں لشکر پہنچنا شروع ہوئے، اور 9 محرم کی شام تک لشکروں کی قطار بندھی رہی۔ جس وقت 8 محرم کے دن عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے کوفہ میں یہ اعلان کیا کہ اب اگر کوفہ میں کوئی جوان یا ضعیف ہمیں چلتا پھرتا نظر آ گیا تو اس کا خون ہم پر مباح ہوگا، میں اس کو قتل کر دوں گا۔ تو اس اعلان کے بعد تو پورا کوفہ کربلا میں امڈ آیا تھا۔ ابن زیاد ملعون نے خود آ کر مقام نخیلہ پر خیمے لگا دیے تھے، اور چاروں طرف اپنے گماشتے بھگا دیے تھے کہ جو کوئی کربلا کی جنگ سے بچنے کے لیے واپس آئے تو اس کو گرفتار کر کے میرے پاس لے آؤ۔ اسی دوران ایک شامی واپس کوفہ جا رہا تھا، تو اس کو گرفتار کر کے ابن زیاد ملعون کے سامنے پیش کیا گیا، تو اس ملعون نے اس کے قتل کا حکم دے دیا۔ ابن زیاد ملعون نے عمر بن قیس جعفی کو پل فرات، جو کوفہ اور کربلا کا درمیانی پل تھا، وہاں پر مقرر کیا کہ کسی کو واپس کوفہ نہ جانے دینا۔ 6 محرم کو جس وقت لشکروں کی آمد ہوئی تو ہر لشکر تبل بجاتا ہوا اور نعرے لگاتا ہوا کربلا میں داخل ہوتا۔ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں، نعروں کا شور، تبل اور نکاروں کا ایسا شور تھا کہ زمین کربلا لرز رہی تھی۔
ऐन इस वक्त मलका आलमीन बीबी आलिया पाक भाई की खिदमत में हाजिर हुई। रो कर फरमाती हैं, मेरा भाई, ये जो हजारों लोग करबला में आपके खिलाफ जमा हो रहे हैं, आप भी तो किसी मददगार को बुलवा लें। इस कूफा में हमारे बाबा पाक की शहनशैयत रही है, कुछ तो उनके चाहने वाले भी होंगे, आप भी उन्हें बुलवाएं। करीम करबला हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया कि बहन, बख्त व अमन के मौसम में तो दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं, और जब मुश्किल वक्त हो तो दोस्त भी पहचानने से इनकार कर देते हैं। अगर आपका मशवरा है तो फिर हम शियान कूफा की तरफ खत लिखते हैं। पहला खत जनाब सुलेमान सरद खज़ई की तरफ लिखा गया। आका शेख ज़बीउल्लाह महलाती लिखते हैं कि इस मौका पर करीम करबला ने 3 खत लिखवाए। एक खत जुमला शियान कूफा की तरफ, दूसरा खत जनाब मोहम्मद हनफिया के नाम लिखवाया जिसमें आने वाले हालात से आगाह फरमाया और वसीयतें भी फरमाई। तीसरा खत सिर्फ जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर की तरफ लिखा गया। जो खत जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर की तरफ लिखवाया गया, उस खत की इबारत ये थी। तहरीर फरमाया कि ये खत करीम करबला की तरफ से आलम इल्म आले मोहम्मद जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर के नाम है। आपको मालूम होना चाहिए कि हम करबला मुअल्ला की जमीन को जीनत बख्श चुके हैं। हमारा जो रिश्ता सरवर कौनैन के साथ है, आप इससे कमा हक का आशना है। अगर आप हमारी नुसरत का इरादा रखे हैं तो फिर जल्दी पहुंचने की कोशिश करें। करीम करबला ने जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर की तरफ खत तहरीर फरमाया। 6 मुहर्रमुल हराम की रात को कासिद रवाना हुआ। सुबह से पहले ये कूफा के दरवाजे पर पहुंचा। आजान सुबह से पहले कूफा की फसील का दरवाजा खुला तो ये कासिद दाखिल हुआ, और सुबह जिस वक्त ये इनके दरवाजे पर पहुंचा तो ये वहाँ मौजूद नहीं थे। ये इब्ने ज़ियाद मलऊन के खौफ से अपने कबीले के किसी दूसरे घर में अपने बीवी बच्चों समेत छुपे हुए थे। ये कासिद उन्हें तलाश करता हुआ इस वक्त उनके पास पहुंचा जब ये नाश्ता कर रहे थे। जिस वक्त इनकी ज़ौजा गिरामी ने इनके सामने नाश्ता रखा था और उन्होंने पहला लुकमा ही उठाया था कि वो उनके गुलूगीर हो गया। उन्होंने अपनी ज़ौजा से फरमाया कि कोई नई खबर आने वाली है। ऐन इस वक्त कासिद ने दरवाजे पर दस्तक दी। ये बहर आए। कासिद ने जल्दी से इन्हें खत दिया और वापस रवाना हो गया। वो वहाँ रुका नहीं, उन्होंने खत जेब में डाला और वापस आ गए। क्योंकि कासिद मुख्तलिफ मकामात से पूछता हुआ इनके पास पहुंचा था, इसलिए कूफा में आबाद बनी असद को ये इल्म हो गया था कि जनाब हबीब के पास करीम करबला का नवाजिशनामा पहुंच चुका है। वो सब जमा हो गए। अब हमारे लिए क्या हुक्म है? मगर इन्होंने अफशाए राज की वजह से ये ना बताया कि इनके पास नवाजिशनामा पहुंच चुका है। जिस वक्त तमाम लोग वापस चले गए तो उस वक्त उनकी ज़ौजा ने अर्ज की कि अब आपका क्या प्रोग्राम है? उन्होंने अफशाए राज के खौफ के पेश नजर इन्हें फरमाया कि हम अभी सोच रहे हैं कि जाएं या ना जाएं, क्योंकि इस वक्त हमारी ज़ईफी है, हमसे तो तलवार भी नहीं उठाई जाती, हम जाकर नुसरत क्या करेंगे? ये फरमाकर उन्होंने ज़ौजा गिरामी को रुखसत किया। इनकी ज़ौजा गिरामी अंदर गईं और अंदर जाकर उन्होंने अपना बुर्का उठाया और लाकर जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर के सर पर रख दिया। जनाब हबीब ने फरमाया कि आप ये क्या मजाक कर रही हैं? उन्होंने जवाब दिया कि आप इमाम मजलूम हजरत इमाम हुसैन की नुसरत करने से औरतों की तरह डर रहे हैं, तो फिर औरतों वाला बुर्का भी पहन लें। इसके बाद इन्होंने बयान किया और रो कर अर्ज करती हैं, आलिया बीबी, काश मैं मर्द होती तो आपके भाई की नुसरत के लिए जरूर आती। इस वक्त जनाब हबीब ने अपनी ज़ौजा को दिल की बात से आगाह फरमाया कि हम जाने की तैयारी कर रहे हैं, मगर हर तरफ नाकाबंदी है, बाहर जाने के लिए कोई रास्ता सोचना जरूरी है। ये 6 मुहर्रम की शाम को घर से निकले ताकि कूफा से बाहर जाकर देखे कोई रास्ता निकल आए। यहाँ उनका गुजर बाजार आंगरा से हुआ। उन्होंने देखा कि हजारों लोग अपनी अपनी तलवारों की धारें तेज करवा रहे हैं, कई अपने घोड़ों को नैले लगवा रहे हैं, कई अपने तीरों और नेजों की नोकों को जहर आलूदा पानी में ठंडा करवा रहे हैं। अल-गर्ज सारा कूफा बड़ी जल्दी में नजर आ रहा है। जनाब हबीब इस बाजार से गुजर कर अगले बाजार में गए। यहाँ उन्होंने जनाब मुस्लिम बिन औसजा को देखा जो एक अतार की दुकान से मेहंदी लेने के लिए आए हुए थे। उस वक्त उनकी उम्र
110 साल थी। जनाब हबीब ने जाकर उनका शाना हलाया। उन्होंने मुड़कर देखा मगर उन्हें पहचान नहीं सके। जनाब हबीब ने अपने रुख से दस्तार का दामन हटाया तो फिर उन्होंने पहचान लिया और उन्हें गले लगाते हुए पहला सवाल यही किया कि आज कूफा बड़ा मुतहरिक नजर आ रहा है, खैरियत तो है? ये जंग की तैयारियां किस लिए हो रही हैं? जनाब हबीब ने उन्हें आगाह फरमाया कि हजरत इमाम हुसैन करबला पहुंच चुके हैं। ये सुनकर जनाब मुस्लिम बिन औसजा ने मेहदी दुकानदार को वापस कर दी और अपने रीश पर हाथ फेर कर फरमाया, अब तुझे ऐसा रंगूंगा कि जो रंग कभी भी नहीं उतरेगा। इन दोनों बुजुर्गों ने कूफा से निकलने का प्रोग्राम बनाया। कूफा से बहर जनाब हबीब की एक जागीर थी, गोया उनका एक ज़रई फार्म था और वहाँ उनके भाई और चचाजाद भाइयों की रिहाइश भी थी। जनाब हबीब और जनाब मुस्लिम बिन औसजा ने आपस में ये फैसला किया कि आज रात हम हर सूरत में इस जागीर में पहुंच जाएंगे। जो पहले पहुंचेगा वो दूसरे का इंतजार करेगा और फिर वहाँ से आगे इकट्ठे जाएंगे। जनाब हबीब ने आते ही अपने गुलाम को फरमाया कि तुम हमारे घोड़े पर सवार होकर शहर के बहर हमारी जागीर के बहर हमारा इंतजार करो। अगर कोई आदमी रास्ते में पूछे तो ये बताना कि मैं खेतों पर काम करने के लिए जा रहा हूँ। और उन्होंने ज़रई सामान में अपना सामान जंग भी छुपा कर भेज दिया। सूरज गरूब होने के फौरन बाद इनका गुलाम रवाना हुआ और मकाम मौदू पर पहुँच गया। जनाब हबीब को कूफा से निकलने के लिए काफी कोशिश करनी पड़ी, इसलिए उन्हें नमाज इशा के बाद घर से निकलने का मौका मिला। इनका गुलाम बड़ी बेचैनी के साथ इंतजार भी कर रहा था और इनके घोड़े के साथ कलाम भी कर रहा था और कह रहा था कि ये सरदार लोग भी अजीब होते हैं और बड़े लापरवाह भी होते हैं। आज हजरत इमाम हुसैन की नुसरत करने का दिन आया है तो वो भी अपनी सरदाराना सुस्ती नहीं बोले और फरजांदे रसूल की नुसरत भी पस्तो पेश कर रहे हैं। गुलाम घोड़े को कहता है कि अब मैं थोड़ी देर इनका इंतजार करूंगा, अगर वो ना आए तो फिर तुम मेरे साथी बन जाना और हम दोनों करीम करबला के नुसरत के लिए हाजिर हो जाएंगे। हम दोनों मिलकर और मैदान में जमकर करीम करबला की नुसरत करेंगे। वो घोड़े के साथ कलाम भी कर रहे थे और रो भी रहे थे और घोड़ा भी साथ रो रहा था। जनाब हबीब ने आकर सलाम किया। गुलाम इनको देखकर बहुत खुश हुआ। इस वक्त जनाब हबीब जनाब मुस्लिम बिन औसजा के इंतजार के लिए रुक गए। कुछ देर के बाद वो भी एक महमल पर बीवी को सवार करके एक कनीज, एक बेटे और एक गुलाम के साथ वहां पहुंच गए। उनने छुप कर आने की कोशिश नहीं की, बल्कि उनकी ज़ईफी और मस्तूरात को साथ देकर पहरेदारों ने उन पर कोई सवाल ही नहीं किया। जनाब हबीब ने प्रोग्राम बनाया कि हम पहले जागीर वाले मकान पर जाकर अपने भाई जनाब अली बिन मज़ाहिर और चचाजाद भाई रबी बिन खौत को भी करीम करबला की नुसरत की दावत देंगे, शायद उनका मुकद्दर भी यावरी करे। ये दोनों यहाँ पहुँचे और इन्होंने अपने छोटे भाई अली बिन मज़ाहिर और अपने चचाजाद भाई को नुसरत इमाम हुसैन की दावत दी। इन दोनों ने इनकी दावत कबूल की। अली बिन मज़ाहिर ने अपनी बीवी को अपने अज़ाइम से आगाह किया तो उनकी बीवी ने इसरार किया कि मैं भी आप लोगों के साथ चलकर मुअज़्ज़मा कायनात की पाक बेटियों की खिदमत करूंगी। इनके चचाजाद भाई जनाब रबी बिन खौत भी फौरन तैयार हो गए। ये छोटा सा कारवां रात की तारीकी में कूफा के नवाह से रवाना हुआ और 7 मुहर्रम की सुबह पहले पहर ये काफिला करबला मोहल्ला में दाखिल हुआ।